So good evening and welcome. Welcome evening. to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. We are in the series of Conversations with God. This is session number 11 and the agenda today is implementing the 7-step journey. Right. So how many of you saw that agenda in the group? Okay, good. So when you saw this agenda, what crossed your mind? क्या होने वाला है आज? 7-step journey क्या है? Any idea? Anything that has come to your mind? I can just make a wild guess. Yes. Maybe it has to do with the chakras, 7 chakras. My first thought was that everybody, being in the healers program would connect with this 7-step or 7-step of evolution of consciousness from root chakra to crown chakra. That is what I normally say. 7 steps to spirituality, I say that. Okay. But yes, that is not the agenda today because that is the agenda for the healers program or the Vedanta wisdom program, which is scheduled on Saturdays, right? तो वो इसके लिए नहीं है. तो आज का क्या है? Of course, in that line only I made this 7-step. But basically what we are saying is, ever since we have started this series of conversations with God, so we have covered many aspects of your spiritual journey, right? And today we are not. It's not actually a recap or a review session, but we are going to list out the 7 steps of the journey, which will actually help you to streamline your thoughts and your growth as you have moved through these sessions. So that is what the session is all about. So you can say it is a recap, it is a review of your spiritual journey actually. How these 11 sessions or possibly these 10 sessions have helped you in your spiritual journey. So that is what we are going to look at. Okay. So is the agenda clear now? What we're going to look at? So yeah. Of course, whatever we have done in the previous sessions also, that will also come. But basically, we are looking at in these 10 sessions, what we have done and how fast our spiritual journey has moved on. And there are many people who have joined you only in these sessions. So it will also be an opportunity for them to see their spiritual growth and see how much they have progressed and what is the next step for them. They can see there, right? So that's what the agenda is today. So meanwhile, let's welcome Alok ji, welcome. Amit ji, welcome. If you can be on your video, that will be great. Yeah, otherwise, sure. It's perfectly fine, whichever way you want to participate. Yes, so let's have some more people share. Santosh ji, would you like to share something? Whatever you have participated in whichever sessions, what is your takeaway? What have you brought into your life after participating in these sessions? It becomes much easier when you think of. Hello. You will have to speak a bit into the mic. Your voice is not clear. I am having some signal issues over here, so maybe I might not be able to talk much today. Okay, that's fine. Go ahead. So what I was telling you is life will become much more easier if you walk on the path of the spiritual journey, and this is what I realized within this few days of listening to all the sessions and practicing everything that has been told by you. Yeah, there is a lot more to learn, but yes, eventually, slowly, we can go in this path and make our life better and even our surroundings life better. All right. Okay, Santoshi, I'll take that as you're sharing now because your voice is not very clear. So when your signals are fine and you want to share more, please do that. Yeah. Okay. Who else would like to share? Meanwhile, is my audio video clear? Yes. You can hear me? Okay, good. Very good. Parveen ji, anything you would like to share? Alok ji, anything you would like to share? What are you taking away from these sessions? How are you impacting your life? Yeah, I would just like to share that actually it's become a it's gone into the conscious, subconscious mind. Every mind it's gone into, and at once I can bring out that I'm throwing a black ball or a golden ball, and I have to stop the black ball, and instead of that, I have to give love, peace, happiness. It's become pretty spontaneous now. Very good. And my daughter was having some problem. So I told her, you do this. She was very upset about a certain thing. So I said, you do this. And I said, at once start doing it.
to the others, you know. So now it's become Very good. natural. It's becoming natural, I would say. Very good, Praveen ji. बहुत बढ़िया. And let's acknowledge Praveen ji. She is not only in the Wednesday session, she is also part of the Healers program, and she is doing pretty well in that Healers program and the Vedanta Wisdom program that we have on Saturdays. So she's a very active participant there, one of the most active participants there. So congratulations, Praveen ji, and good progress. I can see that progress in your journey. Right? Welcome. Okay. Who else would like to share? Alok ji, कुछ share करना चाहेंगे? Meanwhile, Devesh ji, welcome. Leslie, welcome. Yes. Alok ji, कुछ share करना चाहेंगे? What are you taking away from the sessions? Especially in these conversations with God, जो हमारा session हो रहा है, पिछले 10 session से हो रहा है. Right? Anything you would like to share? क्या लेके जा रहे हैं पिछले 10 session से? Meanwhile, welcome Shivani. Namaskar, welcome. Yes. Be part of the group and share whenever you feel appropriate. Yeah. Yes, Alok ji. Try to convert black balls into golden balls. Try to convert black balls into golden balls. Okay, so this concept of golden ball is picking up. Very good, very good. तो कहाँ पे आपने अप्लाई करना शुरू किया सर? अभी ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ी, मतलब जरूरत नहीं पड़ी. ओके. आई एम ट्राइंग, बट ऐसे कोई ऐसे पार्टिकुलर नहीं था अभी तक. Okay. So my invitation I to you remember would be, now. I remember now and try to apply wherever possible. I will try to apply. Yeah. So it has to be spontaneous. जैसे भी प्रवीण जी ने कहा ना, it has to be spontaneous. आपको सोचना नहीं चाहिए. लाइफ में किसी से भी बात कर रहे हो, घर में किसी से बात कर रहे हो, तो आपको ब्लैक बॉल की जगह गोल्डन बॉल भेजनी है. That is what instinctively आना चाहिए. And this is not something that you plan. आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप किसी के बारे में कुछ कर रहे हैं. That means thoughts, words and deeds, actions. जब भी आप कोई कर्म कर रहे हैं तो ये गोल्डन बॉल की एनर्जी जानी चाहिए. Which means what? You are sending an energy ball of love, peace and happiness. चाहे वो thought में भी हो. हाँ जी. तो सुबह सुबह आप अगर अपनी एक प्रेयर, हीलिंग प्रेयर सबके लिए भेज रहे हैं. डॉक्टर प्लीज गो ऑन म्यूट इफ देयर इज अ डिस्टर्बेंस. कौन है? या if there is a disturbance, please go on mute. Yeah. So we were saying you are sending the energy ball of love, peace and happiness to all the people in your life. जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो दिन भर में आप किसी न किसी के बारे में तो सोच रहे हैं ना, किसी न किसी से तो बात कर रहे हैं, किसी के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें गोल्डन बॉल आ जानी चाहिए. दैट इज द मैसेज. तो सोचना नहीं है किसको भेजना है किसको नहीं. नो जजमेंट. लेट इट गो. ओके. तो इट विल बी लाइक इफ आई टेल यू, और किसी के लिए पार्शियल भी नहीं होना है, ठीक है, और किसी के लिए जजमेंट भी नहीं करना. इसका मतलब क्या बताता हूँ, जैसे सूरज है ना, सूरज की रोशनी हर एक को एक बराबर मिलती है. राइट. सन डज नॉट डिसाइड कि ओके ये पापी है, इसको थोड़ा कम धूप देता हूँ, या ये संत आदमी है, इसको ज्यादा धूप देता हूँ. नहीं, सूरज सूरज है, वो रोशनी देगा ही देगा, वो हीट एंड लाइट देगा ही देगा पृथ्वी के हर प्राणी को, चाहे वो चींटी हो या गॉडजिला हो. सो आपके एनर्जी बॉल इस तरीके से जानी चाहिए कि लव, पीस और हैप्पीनेस की एनर्जी बॉल जा रही है. जिसको चाहिए ले लो, सबके लिए है वो. देन यू सी द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. करेक्ट. तो आपने कहा कि सोच समझ के भेज रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये आपको क्लियर किया कि इट विल गो टू एनीबडी एंड एवरीबडी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट गोस. राइट. Right. Perfect. Very good. All right. Anybody else who would like to share? There is some disturbance somewhere. Yeah, I'm trying to see who it is. Sir, I don't know. Alok ji, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे ख्याल से आपके वहां से आ रहा है. Okay. Right. Okay. Anybody else who would like to share? और कोई शेयर करना चाहेंगे? एंड आई होप जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो कोई रिकॉर्डिंग देख के आए हैं कम से कम. हाँ, एटलीस्ट एक सेशन 2 सेशन की रिकॉर्डिंग देख के आए, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो डोंट गेट इम्पेशेंट. जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग. जो पहले के सेशंस हैं सारे यूट्यूब में डाले हुए हैं. मैं पर्टिकुलरली पिछले 10 सेशंस की बात कर रहा हूँ जो कन्वर्सेशंस विद गॉड हमारा सीरीज चल रहा है. ये 11th सेशन है. तो पिछले 10 सेशन में जो कुछ हमने कवर किया उसके बारे में हम एक 7 स्टेप जर्नी की बात करें. सो not wasting further time, let us get into the 7-step story. 7-step journey पे चलते हैं. Everybody ready for that? तो अपनी कमर थोड़ी सी सीधी कर लें.
अटेंशन स्पैन थोड़ा सा अच्छा कर लें और फिर फुल फोकस के साथ हम फटाफट अपनी जर्नी पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने जो शुरू किया था, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको। कन्वर्सेशंस विद गॉड is a book written by Neil Donald Walsh, and I've read that so many times that it has got into my system, right? तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कौन सी सीरीज शुरू करूं, then this thought came up कि let me start with this series of conversations with God, जहाँ पे मैंने वहां से जो कुछ सीखा उसको अपनी एक्सपीरियंस और अपनी विजडम के साथ मैं लोगों के साथ शेयर करने का मेरा आइडिया था। दैट इज हाउ द सेशन स्टार्टेड। और अगर हम बात करें कि अगर आपका भगवान से 1-to-1 फेस टू फेस बात हो रही है, जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं, अगर भगवान के साथ ऐसा आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा तो वो कैसा होगा? वो था हमारा ये सीरीज जो हमने शुरू किया था। तो उसमें हमने शुरुआत करी थी कि भगवान जब कन्वर्स करते हैं, यानी कि भगवान जब बात करेंगे तो किस तरीके से बात करेंगे, हाउ विल ही टॉक। तो गॉड और डिवाइन या जिस भी नाम से आप उनको बुलाते हैं, उनके दो तरीके हैं जैसे वो बात करते हैं, राइट? कैसे बात करते हैं? सबसे पहला तो क्या है, आपने कहानियों में सुना होगा, जब भी कोई बहुत तपस्या करते थे और भगवान प्रत्यक्ष होते थे और वो वरदान मांगते थे, भगवान सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते थे, तथास्तु। तो भगवान की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो है तथास्तु। आप कुछ भी मांगोगे भगवान कहेंगे तथास्तु। तो एक लैंग्वेज तो होती है उनकी तथास्तु। दूसरा क्या होता है, अगर वो भगवान आपको कुछ सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे? थोड़ा सा आइडिया आप ले सकते हो कि जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था? He was talking of universal truths. जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ऐसे कुछ नियम हैं, उन नियम के बारे में भगवान आपको सिखाएंगे, राइट? और उनको सीख के हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तो ये हैं वो यूनिवर्सल लॉस। तो हाउ विल गॉड कन्वर्स विद यू? गॉड विल गिव यू द मैसेज ऑफ तथास्तु, एंड second, he will teach you some universal laws by which you can recreate or create your life. Is the message clear? Everybody okay with that? All right, good. So we started this series with the basic first step. First step क्या था? How do I exist in this universe? यानी कि मेरी existence इस universe में कैसी है? And there is a perfect order in a perfect universe created by a perfect God. यानी कि गॉड परफेक्ट है, उसने ये यूनिवर्स क्रिएट किया जो परफेक्ट है, और उसमें मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं जो परफेक्ट हूं। तो पहला स्टेप क्या है अंडरस्टैंडिंग का? पहला स्टेप है आई एम होल, आई एम कंप्लीट, आई एम परफेक्ट, आई लैक नथिंग, आई नीड नथिंग। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, ना किसी चीज की जरूरत है, ना किसी चीज की कमी है। ये पहला स्टेप है। When you are walking on the spiritual journey, this is the first step, and we had a lot of discussion on this, right? सबको याद है? We had a discussion on this. So this is the first step that we need to take. पहले मैं steps बता देता हूँ 7 कौन कौन से हैं, फिर उस पे हम जब क्लैरिटी आ जाएगी फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। इज ओके? पहला स्टेप क्लियर है? भगवान परफेक्ट है, उन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया, वो परफेक्ट है, और मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस यूनिवर्स में, मैं भी परफेक्ट हूँ। तो मैं होल हूं, कंप्लीट हूं, परफेक्ट हूं, पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, लैकिंग नथिंग, नीडिंग नथिंग। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सल लॉस। अब ये यूनिवर्सल लॉस क्या है? प्रकृति के कुछ नियम, इस ब्रह्मांड को चलाने के कुछ नियम, उनकी सही अंडरस्टैंडिंग होगी अगर, तो हम अपनी लाइफ को सही ढंग से चला सकते हैं। और ये यूनिवर्सल लॉस क्या है? कोई यूनिवर्सल लॉस बताइए मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ कौन सा हमने देखा था? कोई भी बता सकते हैं? लॉ ऑफ कर्मा। हाँ जी, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा। वेरी गुड। अब लॉ ऑफ कर्मा सब लोग जानते हैं, राइट? जो आप अगर बीज बो रहे हो वैसा ही फल आपको मिलेगा, या वैसा ही पेड़ आपको मिलेगा। तो आम का बीज बो रहे हो तो आम का पेड़ बनेगा, आम के फल मिलेंगे। क्लियर है ये? दिस इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक इफेक्ट है, और उसका कॉज क्या है? आपके ही कर्म हैं जो पुराने आपने किए हुए हैं, चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों। तो लॉ ऑफ कर्मा इज स्ट्रेट वे सेइंग दैट आपका भाग्य जो है वो आपका कर्म का फल है।
Recording stopped. Okay. All right. Hmm. So is that clear? Very clear. तो लॉ ऑफ कर्मा इज द फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ. इसकी सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसके ऊपर हमने बात भी करी थी और डिटेल से बात करेंगे. लेकिन लॉ ऑफ कर्मा इज द फर्स्ट बेसिक यूनिवर्सल लॉ. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट है. आपके पुराने कर्म कॉज हैं और जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी लाइफ की सिचुएशंस, बाहर की दुनिया में क्या है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये जो भी हैं बाहर की दुनिया में, ये आपके कर्म का फल है जो आपके सामने आया है. दिस इज लॉ ऑफ कर्मा. वेरी सिंपल. जो आप देंगे वही चीज वापस आएगी आपके पास. राइट. और इसको हम अक्सर इस तरीके से भी समझते हैं कि जो हम बात कर रहे थे ब्लैक बॉल और गोल्डन बॉल की. तो अगर हम किसी को दुआएं दे रहे हैं, किसी को लव, पीस एंड हैप्पीनेस या जॉयफुल होने की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये गोल्डन बॉल है. और ब्लैक बॉल क्या है, किसी के अगेंस्ट हमको एंगर है, हेट्रेड है, एनवी है, जेलसी है, तो ये ब्लैक बॉल है. तो अगर हम किसी को ब्लैक बॉल भेजेंगे, यानी कि या तो सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वही ब्लैक बॉल घूम के वापस आएगी हमारे पास. जो हम दे रहे हैं वही वापस आएगा. करेक्ट. कुछ कभी कभी हमको याद रहता है क्योंकि वो तुरंत आ जाता है वापस, और कभी कभी वो अगले जन्म में आएगा तो हमको याद नहीं रहेगा. इज इट ओके? सो हम जो भी फेस कर रहे हैं लाइफ में, हमारे ही कर्म हैं जो पलट के हमारे पास आ रहे हैं. इसको समझ सकते हैं कैसे? अगर मैं दीवार पे एक बॉल फेंकूं तो वो बॉल दीवार से टकरा के वापस आएगी. अगर दीवार पास में है तो तुरंत आ जाएगी, पर अगर वो दीवार जो है कई लाइट ईयर्स दूर है तो क्या होगा? वो सोल जो है, जो एनर्जी रिसीव कर रहा है, वो जब वापस बॉल टकरा के वापस आएगी तो हम दोनों के कॉस्ट्यूम चेंज हुए होंगे, अगले जन्म में मिलेगी बॉल. तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये मेरे को ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है मेरे से, मेरा पड़ोसी मुझसे लड़ क्यों रहा है बार बार, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसके साथ बहुत लड़ाई करी है और वो इस जन्म में आपकी ब्लैक बॉल को वापस देने आए हैं. क्लियर है ये? तो ये एक तरीके से लॉ ऑफ कर्मा हम समझते हैं. तो पहला लॉ है ये, इसे थोड़ा सा समझा दिया. तो दिस इज लॉ ऑफ कर्मा, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सल लॉज. ये है स्टेप 2. पहले मेरी एग्जिस्टेंस यूनिवर्स में कैसी है, ये स्टेप 1 है. स्टेप 2 है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सल लॉज. क्लियर? देन जब हम, जैसे हम आत्मा हैं और एक शरीर में हैं और हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं. डिजायर्स होती हैं, यस. इन्हीं डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए हम लाइफ पे लाइफ ले रहे हैं. लाइफ टाइम, एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ के बाद दूसरी लाइफ आ रहे हैं. क्यों? बहुत सारे डिजायर्स हैं, वो फुलफिल करने के लिए हम आ रहे हैं. लेकिन फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स कैसे मिलेगी हमको? फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स कैसे मिलती है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ. तो आई नीड समबडी एल्स टू से दैट. कौन बताना चाहेंगे? फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए हम लाइफ लेते हैं बार बार. कुछ डिजायर्स हम फुलफिल करते हैं और फिर पूर्ण तरीके से, हाँ, जब तक वो डिजायर हम लोग का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग लाइफ टाइम तक जीते रहेंगे. एंड जैसे ही वो डिजायर कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग का लाइफ टाइम लेना खत्म हो जाएगा. तो जरूरी नहीं इस इसी लाइफ टाइम में मुझे कुछ डिजायर है, वो जरूरी नहीं इसी लाइफ टाइम में सारी डिजायर्स खत्म हो, है ना? डिजायर्स को बोल अगर रहा हूँ, ड्यूटी तो में जब कन्वर्ट तक- कर देते हैं तो डिजायर्स की इम्पैक्ट कम हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई फील. एक लाइफ टाइम में आपने कुछ डिजायर्स पूरे किए नहीं, आप और जो रह गए उसके लिए आप अगली आपने- लाइफ टाइम में फिर आते हैं, फिर आपने अपनी बोला लाइफ था डिजायर्स कि पूरी करते हैं. एक मिनट पहले सुन लीजिए. अगले लाइफ टाइम, राइट. हाँ तो हाँ, कहने वही. का मतलब ये है कि अगर आपके डिजायर्स पूरे हो रहे हैं तो आप लाइफ में आते रहेंगे जब तक डिजायर्स आपके पूरे नहीं होते हैं. डिजायर्स जब पूरे हो जाते हैं देन वी विल कम टू अनदर टॉपिक विच इज द नेक्स्ट स्टेप. अभी क्या हम बात करें? फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स आपको अगर चाहिए तो पहले डिजायर्स को फुलफिल कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए. तो 2 स्टेप्स हैं. कौन वो 2 स्टेप्स बताएंगे? डिजायर से फ्रीडम लेने के लिए 2 स्टेप्स है हमारे पास, जो हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है और मैं कई बार बोल चुका हूँ. कौन बताएंगे? एनीबडी हु रिमेंबर्स? I think overindulgence on it till the time you've had enough of it, fed up of it, or had enough of it, and it means nothing to you after that. That is one, I think. Okay, perfect. And that is what is Even that I called? feel the same. You indulge in a desire, you fulfill it, and then you outgrow it.
दिस व्हाट इज दिस कॉल्ड? शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है इसके बारे में? कोई नोट्स नहीं पढ़ता है? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग, दिस इज कॉल्ड प्रवृत्ति मार्ग, करेक्ट? तो यू इंडल्ज इन ए डिजायर, यू फुलफिल इट, इट्स लाइक ईटिंग गुलाब जामुन। रिमेंबर द स्टोरी जो मैंने बताई थी? गुलाब जामुन खा रहे हैं आप, तो गुलाब जामुन कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। इट कुड बी जॉब, इट कुड बी करियर, इट कुड बी फैमिली लाइफ, इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी व्हाटएवर, गाड़ी बंगला, मटेरियलिस्टिक गोल्स हो, कोई भी गोल हो, तो गुलाब जामुन है। तो आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, एक टाइम आएगा जब आप कहोगे बस बहुत हो गया गुलाब जामुन, और नहीं खाना। तो ये हो गया आपका प्रवृत्ति मार्ग, करेक्ट? इंडल्ज किया, आउटग्रो किया, और डिजायर से फुलफिल हो गए, फ्रीडम मिल गई। दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब है मेरे को करना ही नहीं है ना, करना ही नहीं है। मुझे चाहिए ही नहीं। अब एक इतना गुलाब जामुन खा लिया आपने, मान लीजिए, तो एक बार आप बोलेंगे ना नहीं अब नहीं करना है। तो अल्टीमेटली हर डिजायर्स को जब आप इंडल्ज कर रहे हैं, अल्टीमेट स्टेप उसका निवृत्ति ही होगा, तभी आप फ्रीडम ले पाएंगे डिजायर से, राइट? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हाउ टू फुलफिल योर डिजायर्स एंड हाउ टू बी फ्री फ्रॉम योर डिजायर्स। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर डजंट मीन यू डोंट हैव एनी डिजायर। आप डिजायर है आपकी, आप डिजायर मीट करिए, फुलफिल करिए, लेकिन विदाउट एनी अटैचमेंट। दैट इज हाउ यू बिकम ए सेल्फ रियलाइज्ड सोल, विच इज द टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं वो है जीवन मुक्ता। तो एक जीवन मुक्ता जो है वो लाइफ में जीता है, एक्चुअल लाइफ में हर चीज में वो इन्वॉल्व रहता है, अपनी डिजायर्स पूरी करता है, एंड देन ही आउटग्रोज दैट डिजायर्स एंड बिकम फ्री फ्रॉम इट। तो एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। देन वी टॉक्ड ऑफ जीवन मुक्ता की लाइफ कैसी होती है। एक सेल्फ रियलाइज्ड अगर सोल है, अभी तो हम ऑन द पाथ है ना, हम सब WIP हैं। WIP समझते हैं हम सब डिवाइन है, लेकिन हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हमारी परसेंटेज ऑफ डिविनिटी डिपेंड करती है, कोई 1% पे है, कोई 2% पे है, कोई 3% पे है, और जो सदगुरु हैं या शिवानी जी हैं उन सबको मान सकते हैं वो 90% डिविनिटी पे हैं। तो हम सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, किसी न किसी लाइफ टाइम पे हमारी परसेंटेज भी अच्छी होगी। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? WIP, अपने कर्मों से, कर्मों का सुधार करते हुए अपने अंदर की डिविनिटी को हम बढ़ा रहे हैं। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? इस पे कोई डिबेट तो नहीं करनी, राइट? यस देवेश जी, आपका हैंड रेस है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी शशि जी। हाँ जी बोलिए। शशि जी, मेरा एक क्वेश्चन था, कॉज एंड इफेक्ट जो प्रिंसिपल है वो फिजिकल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है ना? जब आप एनर्जी और वाइब्रेशंस वाले उसमें मोड में जाते हैं और वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, तो क्वांटम लेवल पे जाएंगे, तो वहां पर ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं एप्लीकेबल है। कॉज एंड हाँ, इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स देवेश जी। इस ब्रह्मांड में जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप फील कर रहे हैं, वो सब कॉज एंड इफेक्ट से ही चल रहा है। तो दैट मींस कि फिजिकल वर्ल्ड ना सर, जब आप यूनिवर्स, फिजिकल यूनिवर्स। यस, फिजिकल यूनिवर्स, अगर आप एनर्जी और वाइब्रेशंस के उसमें देखेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। मैंने तो कर्मा इज कॉज एंड इफेक्ट, और लॉ ऑफ कर्मा इज ओनली फॉर द फिजिकल यूनिवर्स। एग्जैक्टली, राइट? एब्सोल्यूट डिवाइन के लेवल पे देयर इज नो कर्मा। एग्जैक्टली, है ना? वो तो फ्री हो गए उसमें कॉज एंड इफेक्ट से। वो अगर चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहते हैं, इसीलिए यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। यस यस यस। So when you are out of the universe, you will create a universe. You are the source of the universe. वेरी ट्रू। You are the source of all creation, and you are free from karma. जी जी। Is that clear? या बाकी लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का एक डिस्कशन चला गया बीच में से, राइट? सो इट्स परफेक्टली फाइन। वी आर टॉकिंग ऑफ, आप यूनिवर्स में हैं तो हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। जी जी जी। या ओके, परफेक्ट, ऑलराइट, गुड। Yes, so let's have someone else share. Janardhan Thope says no confusion. Okay, very good. कोई confusion नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। Okay, anybody else who would like to share? Hello, मेरा कहना है था कि when we go to the chit higher conscious level and we are able to disappear our self and the small self migrates to the bigger self, then वो मजा है, बहुत मजा है उसमें। Because where this no confusion is the datum, where there बिल्कुल कोई confusion है नहीं,
बिल्कुल परफेक्ट जी, सर, टोटल परफेक्ट सरेंडर जनार्दन है, जी। टोटल सरेंडर। हाँ, आपके डिस्कशन हमेशा एक सेशन आगे होते हैं, इसलिए मेरे को आपको रोकना पड़ता है, right? हाँ Because जी, I have to take everybody into the हाँ same, बिल्कुल right? ठीक So है। don't mind if I ask you to, you know, cut short your sharing, क्योंकि पिछली बार भी सेशन में यही हुआ था, आप एक सेशन आगे थे हमसे. I hope you have watched that session. Okay, Okay, right. bye-bye. Thank you so much, sir. So you can share whenever you feel like. That's perfectly fine. Anybody else who would like to share? Anybody else who would like to share? तो एक सेल्फ रियलाइज सोल के लिए और क्या जरूरी है? एक फ्रीडम फ्रॉम डिजायर हमने देख लिया. अगर आप फ्रीडम फ्रॉम डिजायर लेके आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो यू कैन अचीव योर सेल्फ रियलाइजेशन फास्टर एंड you will be more effective in life. When I say more effective in life, self realization का पर्पस क्या है? किसी को मालूम है? सेल्फ रियलाइजेशन का पर्पस क्या है? Why do you want to be self realized? स्पिरिचुअल जर्नी में चलना क्यों है? मजे की जिंदगी बिता रहे हो, खाओ पियो ऐश करो, स्पिरिचुअलिटी को जो बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी का कीड़ा क्यों लग गया? क्या जरूरत है? क्या बोलोगे? स्पिरिचुअलिटी से क्या मिलता है? Somebody else who would like to share? Kind of peace of mind. Peace Shanti, of mind, very good. Peace of mind and self-confidence, confidence, very good. Or To Uh, end sufferings. towards to positive thoughts, positive thoughts, confidence, To end the suffering. Realization of that truth. एक एक करके बोलेंगे. हाँ जी. To end the suffering. Realization of the inner truth. Okay, you get the truth. Okay, fine. So you realize the truth. All right. creating happiness, Creating happiness. creating Okay, very good. memories also. Okay. All right. So let us understand. जो भी आप सबने बोला सब बिल्कुल सही है. And this list can go on. So I'm just stopping everybody. Everybody is right. Main चीज क्या है बताओ? हाँ जी. What I feel is the ultimate goal is to stop the journey of this rebirth. Maybe I'm not sure. Most of the people Okay. say that. So stop the journey of rebirth. थोड़ा सा और ज्यादा हाई फाई डिस्कशन हो गई. चलिए मेन चीज बताता हूँ. अब किसी कोई बोले मेरे को अगली लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं ना, मेरे को अभी की लाइफ के बारे में बताओ. मेरे को स्पिरिचुअलिटी से इस जन्म में क्या मिलेगा? तो जो कुछ आपने अभी बोला, कॉन्फिडेंस, यू नो, पीस एंड हैप्पीनेस, ये सब चीजें ठीक है. मेन चीज क्या है बताओ? इन सबका सार क्या है? इफ यू एनालाइज योर डेली रूटीन, अगर आप अपने डेली रूटीन को एनालाइज करें, 24 घंटे में से हम कितने घंटे इफेक्टिवली काम करते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिवनेस, सब समझते हैं ना? प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवनेस मतलब क्या है? हाँ? ये अगर आपका 5% पे है, या 10% पे है, या 15% पे है, इससे ज्यादा नहीं होगा. अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स सही ढंग से एनालाइज करके देखें, 24 घंटे में कितना टाइम आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इफेक्टिव काम कर रहे हैं, तो 15 से 20% से ज्यादा कोई भी प्रोडक्टिव या इफेक्टिव नहीं होता है. When you are on the spiritual journey, what happens? आप अपने बॉडी के जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस. क्लियर है सबको ये? एंड माइंड के 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट. इन तीनों को अगर हम, इन 8 एलिमेंट्स को, 5 बॉडी के और 3 माइंड के, इनको अगर हम अलाइन कर लेते हैं और फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही यही है. ऑल दीस आर अलाइंड. व्हाट विल हैपन? आपकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस विल गो अप 100%, विच मीन्स अगर आप 20-30% पे हैं, अब आप आराम से 60-70% पे काम करेंगे. माइंड पीसफुल है, बहुत पावरफुल हो जाता है माइंड जब पीसफुल हो जाता है. स्ट्रेसफुल माइंड में काम करना अच्छा होता है या पीसफुल माइंड में काम करना अच्छा होता है? सबको मालूम है ना? वी आर मोर इफेक्टिव व्हेन वी आर पीसफुल, व्हेन वी आर हैप्पी. तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी. 30% से 60%, 70% आसानी से पहुंच जाओगे आप. सिर्फ 1 घंटा मेडिटेशन करो, जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहो, चाहे योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो. आइडिया क्या है? योर इफेक्टिवनेस एंड productivity in this lifetime will go up, and then of course later on you will find that it is also easing out your karmas. आप अपने कर्मास को हील कर रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे जैसे तेजी आएगी, तो आप लाइफ एंड बर्थ से भी फ्री हो जाओगे, आप सेल्फ रियलाइज भी हो जाओगे. राइट? ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. सो नाउ वी आर टॉकिंग इन दैट लाइन. तो जब आप सेल्फ रियलाइज अगर हो रहे हैं, उस जर्नी में जा रहे हैं, तो फ्रीडम फ्रॉम डिजायर तो आपको मिल गई.
बात कर ली हमने। और क्या मिलेगा आपको? फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड मिजरी। हाउ मेनी ऑफ यू वांट सफरिंग फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड मिजरी इन लाइफ? आज की लाइफ में बहुत सफरिंग है, बहुत मिजरी है, बहुत पेन है, बहुत हर्ट है, तो इनसे फ्रीडम मिलेगी आपको if you are on the spiritual journey. That is why spirituality is so important right now. That is why spiritual healing is so important right now. आप अपने कर्मास को हील कर रहे हैं, अपने चित्त को खाली कर रहे हैं या अपने चित्त को शांत कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफेक्टिवनेस, आपका हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ जाएगा। And that is why this is so very important. That is why yoga, meditation, pranayam, all these are so important. Correct? Yes, Janardhan ji, very good point. Thank you. Everybody clear on this? So freedom from desires is very important. Freedom from suffering and misery, another important thing that we touched on. So this will tell you how fast you are moving on the spiritual journey. And how many of you we have fears in life? Fears है. So welcome to humanity. अगर आप human body में हैं तो आपको fear होना ही है। क्योंकि आपके अंदर जब तक ईगो रहेगा, ईगो इज बेस्ड ऑन फियर। सो द मोर यू रिड्यूस योर ईगो, यानी कि जितना आप ईगोलेस होंगे उतना ज्यादा आप फेयरलेस होंगे, फियर कम होता जाएगा, क्योंकि ईगो इज बेस्ड ऑन अटैचमेंट एंड फियर। तो ईगो को कम करेंगे कैसे? डिवाइन के साथ कनेक्शन जोड़ के। स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे चलोगे, क्या होगा? ईगो कम होगा। ईगो कम होगा तो फियर कम होगा और अटैचमेंट कम होगी। That is why all these benefits will show up. Making sense? Making sense, everybody? All right. So let's have some more people share what is opening up. ये सब हम कर चुके हैं, वैसे मैं सिर्फ स्टेप्स को आउटलाइन कर रहा हूँ। डिटेल्स में हम ऑलरेडी सेशन में देख चुके हैं कैसे करना है ये सब। राइट, सो हु वुड लाइक टू शेयर? देवेश जी, आपका हैंड रेस है, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी शशि जी, मैं वो शेयर करना चाह रहा था कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों जाना चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मेरी रिसर्च कहती है, और वो ये मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा इनर वर्ल्ड है, दैट इज समवट लॉट ऑफ इल्यूजन्स आर देयर। तो एक लॉट ऑफ इल्यूजन्स आर देयर, ओके, है ना? तो क्लियर पिक्चर नहीं होती है। एंड आउटर वर्ल्ड इज द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड व्हेन यू क्लोजली ऑब्जर्व योरसेल्फ। तो होता क्या है कि जो जितने भी जो चैलेंजेस हमारे आउटर वर्ल्ड में आते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी इन द इनर वर्ल्ड होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में जाने की वजह से ये जो वी हैव द बेटर क्लैरिटी ओवर ऑल दीज चैलेंजेस, और जैसे ही हमने अपने इनर वर्ल्ड को कमांड में लिया नहीं, तो हमारा आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली कमांड में आ जाता है। बिल्कुल सही सर, परफेक्ट। तो आप स्पिरिचुअलिटी में जब आप कोई भी साधना कर रहे हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, कुछ भी हो, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? आपकी इंटरनल वर्ल्ड क्या है आपका? सदगुरु जी बोलते हैं इनर इंजीनियरिंग। इनर इंजीनियरिंग में इनसाइड वर्ल्ड क्या है आपकी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यस, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है ना। इसको अगर हम अलाइन कर लें, इनर इंजीनियरिंग सही कर लें, तो बाहर की दुनिया को हमको कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड इज ओनली ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इनसाइड वर्ल्ड। ये अभी देवेश जी ने बताया। क्लियर है सबको ये? सर, ये जो मन, बुद्धि, चित्त जो आप बता रहे हैं, इसको सेग्रीगेट करके हम कैसे एनालाइज करें? मतलब आई एम अनेबल टू सेग्रीगेट दीज थिंग्स कि मैं अभी किस फैकल्टी से ऑपरेट कर रहा हूं। मैं सारी फैकल्टीज इकट्ठे ही जाएंगी, आपको सिर्फ ये देखना है अगर वायरस घुस गया है कहीं पे तो कहाँ घुसा है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। माइंड क्या है आपका? व्हेन वी टॉक ऑफ माइंड, वी आर टॉकिंग ऑफ बेसिकली इमोशन। ठीक है, वी आर टॉकिंग ऑफ इमोशन। देन वी टॉक ऑफ बुद्धि इज इंटेलेक्ट। ओके, चित्त इज द माइंड स्पेस। चित्त इज द मेमोरी, यू कैन से। मेमोरी मीन्स आपके माइंड स्पेस में जो भी आपका ये सारी चीजें जहाँ पे इम्प्रिंटेड हो रही हैं, सारी मेमोरीज जहाँ पे लॉज्ड हैं, वो है चित्त। ओके, अहंकार इज द ईगो। ओके, करेक्ट। अब आपको एनालाइज करना है व्हाट इज कॉजिंग यू अनईजी। अंदर अगर ईज में नहीं है, डिजीज में है, तो बाहर की दुनिया में हार्मनी नहीं होगी। I keep saying this.
अगर बाहर की दुनिया में हार्मनी नहीं है तो बाहर की दुनिया को ठीक नहीं करना है। क्या ठीक करना है? आपके अंदर जो ये अलाइनमेंट है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का, ये अलाइनमेंट बिगड़ गया है, ये डिस ईज में आ गया है, इसको ईज में ले आओ। ये आप साधना से लाओगे, इसको अलग अलग से एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी साधना का डोज बढ़ाओ, ये अपने आप अलाइन हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज इनर इंजीनियरिंग। जैसे जैसे अंदर की दुनिया सही होगी, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया इज ओनली ए प्रोजेक्शन ऑफ योर इनसाइड वर्ल्ड। यस शशि जी, मेरा ये कहना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईगोज, देयर आर दैट टू इज टाइप्स ऑफ ईगोज। वो ईगो उसमें नहीं जाएंगे सर, उसमें नहीं जाएंगे अभी। अभी एक ईगो काफी है। सही है सर। ईगो को एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को ये इल्यूजन होता है कि आई एम वेरी हम्बल एंड ऑल दोस थिंग्स, बट छोड़ इवन दीजिए जब वो सर, हमको जब उसका स्वाध्याय जो करना है। आपको क्लियर है ईगो क्या है? जी आपको जी क्लियर है ईगो क्या है? नहीं सर, बताइए। Okay, so you are making this session a bit more complicated. I hope it is okay for everybody. You want me to answer that? How many of you want me to answer that? And by the way, don't believe anything that I say. ठीक है, मैं पहले आपको चेतावनी दे दूं। Don't believe anything that I say. Find out for yourself. मैं Very good. अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से और अपनी विजडम से बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है एक्सेप्ट करिए, अच्छा नहीं लगता ढूंढिए और आंसर, और जब आंसर मिल जाए मुझे भी आके बता दीजिएगा। ठीक है, राइट नाउ आई विल गिव यू व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर मी। जो मेरे को सही आंसर लगा, मैंने अपनाया, मेरे को पावर मिली उससे, और मैं वो शेयर कर रहा हूँ। इज दैट ओके? एवरीबॉडी ओके Yes. विद दैट? ऑलराइट, तो अगर मैं बोलूं ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रायून बीइंग्स, एवरीबॉडी ओके विद दैट? बॉडी, माइंड एंड सोल, हम ट्रायून बीइंग हैं। बेसिकली हम सोल हैं एंड वी हैव ए बॉडी एंड वी हैव ए माइंड। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तो हर जगह लिखा हुआ है ना? Yeah. तो आई एम ए सोल, आई हैव ए बॉडी, आई हैव ए माइंड। क्लियर? Now, when I am saying something, when I'm thinking something, when I'm saying something, when I am doing something, मैं दो polarities या दो extreme end से मैं operate करता हूँ। ओके, एक है जिसको काफी लोग बोलते हैं ईगो, कुछ लोग उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। ओके, और कुछ जो कि हमारी बन गई है, या पर्सनैलिटी बोल लो, आइडेंटिटी बोल लो, या ईगो बोल लो। और दूसरा एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ, या डिवाइन, या आत्मा के लेवल पे। इज दैट ओके? राइट? तो सोल के लेवल पे जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई, अगर आप पूछोगे मेरे से, आइदर आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम ए लेवल ऑफ ईगो और आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ डिवाइन। और कोई मेरे पास पोलैरिटी नहीं है ऑपरेट करने की। आइदर आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ ईगो और आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ डिवाइन। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आइदर इट विल बी फ्रॉम द लेवल ऑफ ईगो और इट विल बी फ्रॉम द लेवल ऑफ डिवाइन। क्लियर है? इसको हम अक्सर इस तरीके से भी लेते हैं, आइदर आई एम बीइंग एन आइडेंटिटी और आई एम बीइंग ए पॉसिबिलिटी। मेनी पीपल विल कनेक्ट विद दिस। या सो सिल्विया जी, Leslie, you could connect with that, right? Either I am being an identity or I am being a possibility. He's basically saying either I am operating from the level of ego or I am operating from the level of divine. Okay, so how are all the people different? हम सभी 5 तत्वों से बने हुए हैं। हमारे माइंड का बेसिक नेचर भी वही है, ईगो, इमोशन एंड इंटेलेक्ट। Why is it different? Why is it different is because the percentage of divinity and ego is different. कोई 1% ईगो से काम कर रहा है और 99% डिविनिटी से काम कर रहा है। और टू बी ऑन द बेटर कैलकुलेशन हम ये बोल सकते हैं 90% डिविनिटी है, 10% ईगो है। तो उसके कर्म कैसे होंगे? ज्यादातर सात्विक होंगे, राइट? एंड यू विल बी ऑन द वे टू बिकमिंग ए सेंटहुड। कोई 90% ईगो में है और 10% डिवाइन में है, तो उसके कर्म कैसे होंगे? वो ज्यादातर तमस में होगा। तामसिक समझते हैं सब लोग, तमस, रजस और सत्व की बात कर रहा हूँ। एवरीबॉडी ओके विद दैट? क्लियर है? ये क्लियर है? नहीं है? राइट? या सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कर्मास ऑफ डिफरेंट पीपल। आपके अंदर जितनी ईगो है, जितनी डिविनिटी है, उसके हिसाब से आप अपने कर्म चूज करेंगे और उसके हिसाब से आप अपना एक्सप्रेशन करेंगे डिविनिटी का। तो आपके कर्म भी वैसे ही होंगे और आपका भाग्य भी वैसे ही बनेगा, राइट?
So either you are being your identity or ego, or you are being your divine. इनके percentage का जो combination है, that will decide the level of your karmas. So Devesh, did I answer you, or you need more clarification? Hello? Or did I confuse everybody? सबको confuse कर दिया? कुछ तो बोलिए. No, sir, very logical, very logical. Logical, very good. So you got an answer? Yes. Good. Anybody who has got confused, who doesn't have the, who wants me to speak more, please raise your hand and have a discussion. अगर कुछ क्लियर नहीं है तो डिस्कशन करिए. क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है. कौन पूछना चाहेंगे? अमित जी, you have a very. I've got a little bad throat and fever. I had so many questions were cropping up right now, especially with interesting questions. I could see that questions on your face, तो आप पूछ सकते हैं. पूछिए. Can't speak much, but then when you say that either we can operate from ego or from divinity, so is it not technically possible that at one single point of time there can be a combination of both? मुझे मालूम था आप ऐसे ही कुछ पूछोगे. वेरी बहुत सुंदर, वाह, बहुत सॉरी. नहीं, बहुत सुंदर प्रश्न. ओके, तो अमित जी, ऐसा होता है, ये आप चूज नहीं करते हो एक्चुअली, है ना, क्योंकि ये बहुत डीप लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से निकलेंगे आपके एक्शंस. तो ये आपके संस्कार कौन से एक्टिव हैं वो डिसाइड करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप. आप क्या कंट्रोल करोगे? मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, ये आप रोक सकते हो. करेक्ट. संस्कार कौन से ट्रिगर हो रहे हैं, यू डोंट नो. वो ऑटोमेटिक होगा. आपने कुछ देखा बाहर की दुनिया में, अचानक कोई संस्कार ट्रिगर हो गए, राइट? तो उस समय जिसको आप, जिसके साथ, जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मी, राइट? व्हेन यू आर मीटिंग मी, यू आर टॉकिंग टू मी, सम संस्कार विल गेट ट्रिगर्ड, एंड दैट विल get triggered because of your decision of whether you want to be an ego or the divine. Mixture नहीं होगा. या तो आप ईगो से ऑपरेट करेंगे या आप डिवाइन से ऑपरेट करेंगे. लेकिन तुरंत 15 मिनट के बाद मैं चला जाता हूँ, आप किसी और से मिल रहे हो, again that choice will come up and again you will decide whether it is ego or divine. तो आप बड़ी जल्दी स्विच करते हो, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, unless you are very very aware of your actions. पर हमेशा एक ही पोलैरिटी होगी, either you are identity or you are a possibility, either you are from ego or you are from divine. इसमें ग्रे नहीं होगा, इसमें ब्लैक या गोल्डन ही होगा. या तो ब्लैक बॉल है या गोल्डन बॉल है. रिमेंबर दैट. यू कांट से आई कैन थ्रो बोथ द बॉल्स. नो, इन दैट केस इट इज a black ball. So if there is a doubt, you take it that it is ego. Unless you are 100% clear, only then it is divine. So did I make sense? Completely. And I think it is possible to have the desired combination of divinity and ego at certain actions, which are result to a inward stimulus. So I think a lot of people experience this. I'm sure that you would have also experienced that there is a possibility to make a combination that divine भी है और उसमें एक identity का भी element है, but the outward action will actually be a combination. आप मान सकते हो, अगर वैसे भी theoretically आप बात करोगे तो आप ये मान के चलो कि उसमें 90% divinity है, 10% ego है, तो mainly तो divinity हुआ ना, या 90% ego है तो ego हो गया वो. Correct. And it happens बराबर तभी होगा जब 50-50 में होगा, which is a very very fluid state. नहीं होगा. So you will be clear. Yeah. See, if you understand the difference, how does ego operate? Tell me. Let's have some discussion on this. आज का टॉपिक यही मान लेते हैं. हाँ, बाकी स्टेप्स हम बाद में करेंगे. पहले ये क्लैरिटी ले लें. Is that okay with everybody? Okay with everybody, because I think the group consciousness calls it. तो ईगो का पैटर्न क्या होगा बताइए मुझे. Mind driven. हाँ, mind driven instead of समझ में नहीं mind driven by mind instead of the soul. नहीं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है. स्टेट ऑफ बीइंग में ईगो है या डिवाइन है, उसे माइंड मतलब माइंड तो प्रोसेस करेगा.
माइंड तो सिंपल है, माइंड तो सिंपल प्रोसेस करेगा, क्या देखा, क्या सुना, क्या बोलना है, क्या करना है, वो सब माइंड का काम है ना। माइंड को ऑपरेट कौन कर रहा है, ईगो कर रहा है या डिवाइन कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक ओके, है। माइंड का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। माइंड को ऑपरेट कौन कर रहा है, ईगो ऑपरेट कर रहा है उसे या फिर डिवाइन ऑपरेट कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। Correct. तो अगर वो ईगो ऑपरेट करेगा तो माइंड, तो ईगो कैसे काम करता है, ईगो विल सेपरेट, ईगो विल ट्राई टू स्नैच, ईगो विल से व्हाट इज इन इट फॉर मी, मुझको इसमें क्या फायदा है, ये ईगो है। ईगो अलग अलग करता है, मैं इंडिया तुम पाकिस्तान, मैं यूपी तुम बिहार, सेपरेट कर रहा है ना। ईगो का काम सेपरेट करना है, ईगो का काम है सेपरेट करना और स्नैच करना, ठीक है ना। सेल्फ, डिवाइन का काम क्या है, हाउ कैन आई सर्व यू, कंट्रीब्यूट करना है, यूनिटी कॉन्शियसनेस, हम सब एक हैं। फर्क समझ में आया, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते ना। पर आप ये बोल सकते हो 24 घंटे में मैं 20 घंटे ईगो में हूँ, 4 घंटे डिविनिटी में हूँ, ये एनालाइज कर सकते हो अगर आप बहुत कॉन्शियस हो तो। बट ज्यादातर लोग ईगो में ही रहते हैं, डिविनिटी से बहुत कम आती है, राइट। कंपटीशन ईगो का काम है, कंपैरिजन, जजमेंट, ब्लेमिंग ईगो का काम है, फियर, एंगर, हेट्रेड ईगो का काम है, forgiveness and gratitude डिवाइन का काम है। so you will know very well, ego is in tamas, divine is in sattva। आप एक ही टाइम पे दोनों कैसे कर लोगे, नहीं हो सकता ना। थ्योरेटिकली जो मर्जी बोलो, प्रैक्टिकली होगा ही नहीं ना। that's what I tried to wanted to say। yes, सोचिए थोड़ा सा अमित जी, तब तक मैं लेस्ली के पास जाता हूँ। लेस्ली has hand raised। yes लेस्ली, go ahead। There's one just one line, last line when you said ego का काम है separate करना, so मेरी एक favorite line है, वो संजीव सर तो कई बार सुन चुके, that state where there is no difference between stillness and movement, and I read that line in that Samadhi movie which I've been talking about। that is soul consciousness, that is completely in that level of divine। yeah, बहुत बढ़िया experience है वो, मतलब आप, yeah, especially with these sessions and that movie, so clearly I can see difference that okay वो divine है, ये ego है, और कहाँ क्या सा combination, मतलब unexplainable है। very good। ये समाधि मूवी कौन सी आ गई भाई, ये तो आई हैव नेवर भेज हर्ड दूंगा, दिस। I'll चलो send बाद you में the बात कर लेंगे। बाद में सर, बट डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा। लेस्ली यू वांट टू शेयर समथिंग। ईगो की डेफिनेशन जो आज से 8-10 साल पहले आई थी, सेंस ऑफ सेपरेटनेस इज ईगो, सेंस ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस इज ईगो। एंड आई विल कम टू द एग्जैक्ट डेफिनेशन। ये थोड़ा अभी हम पहले डिस्कस कर लूं उसके बाद। हाँ जी लेस्ली, यू वांटेड टू शेयर समथिंग, गो अहेड। आप जब कैन यू हियर मी? हाँ यार, ओके, आप जब डिवाइन ऑपरेट कर रहा है, डिवाइन का मतलब यहाँ पे आप सेल्फ गुणों की बात कर रहे हैं या आप प्योर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं? you will operate from two levels, one is ego, one is divine। आई नो That's all I'm दैट, saying। मैं वो कह रहा हूँ, नहीं, अगर डिवाइन में आपने बोला डिवाइन ऑपरेट करेगा तो सर्व करेगा, फॉरगिव करेगा, तो ये तो गुणों का पार्ट आ गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या आप डिवाइन को गुणों की बात कर रहे हैं? तो डिवाइन सद्गुणों will की बात operate कर only रहे हैं, through सतोगुण और निर्गुण। तो वो गुणों में आ गया, इसका मतलब Divine तो will we are not operate talking about only pure through consciousness. सतोगुण and निर्गुण, because it is through you that is operating your life, right? Ego हाँ, will तो operate, गुणों में हाँ, गुणों में ही आ गए ना। माइंड के थ्रू तो गुणास में ही आएगा ना, ऑपरेट तो माइंड के थ्रू ही करोगे। ओके, तो एग्जैक्टली, तो मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि आपने जब सेपरेट किया ईगो को और डिवाइन को, तो उसमें यही बोला कि जिस तरीके से आप समझाते हो कि तमस आपका ईगो वाला पार्ट आ जाता है, और रजस और सत कौन सा सत्व will be yeah, self or divine, डिविनिटी, तो वो गुणों में ही आ गया। हाँ, माइंड, सब बॉडी को ऑपरेट करने के लिए माइंड चाहिए ना, माइंड तो इन्हीं से काम करेगा ना, इन तीनों से ही काम करेगा। पर उस माइंड को काम कौन करा रहा है? अगर ईगो काम करा रहा है तो तमस में रहेगा, डिवाइन काम करा रहा है तो सत्व में रहेगा। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से। पर मैंने वही कहा कि अभी तो मैं कह रहा हूँ कि डिविनिटी को आप सद्गुणों के ही अंदर डाल रहे हो ना, गुणों में ही डाल रहे हो ना। बिल्कुल। और अल्टीमेट डिवाइन हो जाएगा जब ईगो डिसॉल्व हो जाएगा, देन इट विल बिकम निर्गुण, देन हाँ, गुणों तो से फिर परे हो ईगो जाओगे। इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो तो डिफरेंट हो गया बिल्कुल। हाँ,
That's a different, that's a hypothetical state right now. In the body, you will not achieve that. That's fine. Understanding is right. Good. Yes, anybody else who would like to share? And we are approaching the closing time. Yes. So the next steps jo the usme relationships ke, these were covered in the last few sessions. So I think उस पे काफी चर्चा हो भी चुकी है, काफी हम डिस्कशन कर भी चुके हैं, right? But anybody, we will continue this in the next session so that we cover that part also. But right now, whatever we have covered so far, the 3 steps that we have covered, rather 4 steps, right? 4 steps हमने cover किए. Janardhan Thope says, Sattva Guna Rudra Bhagwan performs act of closing this birth and gives to another birth. Sir, हाँ, बिल्कुल सही है. Yes, so who would like to share? Anybody else who wants to share something? Otherwise, I'll go to Sanjeev. Sanjeev, your closing statements. Anything you would like to share? Shashi, thank you very much. And I would say that this was a lovely revision for everybody. And also for someone who didn't join, they can actually visit the last 10 videos because that will give a lot of clarity of all the basics we have done. A very insightful revision, I'll say. Thank you very much. Thank you, Sanjeev, for your feedback and sharing. Okay, so last and final call. We still have 3 minutes. Last and final call. Anybody who wants to share? Sylvia ji, आपने कुछ नहीं कहा आज. What is your takeaway? I was just thinking divinity, when we are talking about divinity or and through ego is working for oneself, and when we talk about divinity, we think about others come into the working for, no? Very Is good. something like that. Yeah. Ego will always play the FM of WIIFM. What is in it for me? Wow. Divinity or self will always say how I can contribute to you. हाँ, तो ये others. फर्क हो जाएगा. ठीक है? And ego का वैसे एक बहुत अच्छा definition है, कहीं पढ़ा था मैंने. It is attachment to your wrong interpretation of yourself. मतलब आपने कुछ अपनी एक धारणा बना ली है जो गलत है. That is ego. And आपका true nature क्या है? That is divinity. Actually, you are divine. But then you don't experience yourself as divine. So whatever you experience yourself as, that is called ego. So a wrong interpretation of yourself is ego. So which is the dark side. यानी कि heads or tails में अगर हम बात करें, है ना? तो ego and divine are 2 facets of the same existence, which is you. So you are life. You're not a life form. You are life. And that divine operating through you is in the form of either ego or self, which is, you can say, either identity or possibility. That is easier to understand, I suppose, for those who have done that program, right? So either you are an identity or you are a possibility. That will show that whether you are from ego or you are operating from self. So that is the answer. All right. So with this, we come to the end of the session. Last and final call. Anybody? Any last question? Ego की नई definition. Sure. So you're on mute. Yes. So I was rudely disconnected by the Some ego. network. So I hope everybody is there. Yes, everybody is there. Right. So By the divine. coming to the end of the session. So last and final call. Anybody who would like to share? Sashi, your disconnection was a divine call or an ego call? Divine call. I'll have to check with the divine. All right. Good. All is divine. All is divine. Yes. Okay. So last and final call. Anybody wants to share something? Anybody wants to ask something? So So while you basically any act which is being done in consciousness, if it is with expectation, then definitely it means it is with ego. No, expectations If can any be act- for others also, no? I expect the whole world to come to Satyug. That is a divine call. I expect that Okay. Satyug will start from tomorrow. That's a divine call. So expectation is, there is nothing wrong in that. There is nothing wrong in desires and expectations. The problem is in the attachment to it. Yeah. Be Okay. So non-attached the and you will be free. the more refined is non-attached expectation. Any act with non-attached expectation is not a egoistic deed.
You don't have to shun egoism. Just be aware of it. That's all. Because when you are aware of it, you will increase your percentage of divinity. ईगो में प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो जिंदा ईगो रहेगा, है ना? तो आपको सिर्फ उसकी परसेंटेज ऑफ डिविनिटी को बढ़ाने के लिए साधना करनी है. तो डू योर साधना, डू ज्ञान फिर तो योग, जैसे राज योग, कह रहे भक्ति हैं योग, जो भी करना है करो. फिर तो जैसे अमित जी कह रहे हैं वो क्रॉप अप होता ही रहेगा एज वो तो लॉन्ग आएगा एज ही वी आएगा. कीप. वो तो आएगा ही आएगा. आपको अपनी परसेंटेज ऑफ डिविनिटी बढ़ानी है. जो आज है कल उससे 1% बढ़ा लो, 0.001% बढ़ा लो, धीरे धीरे. स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स. Don't take a big step. Mind will not accept it. Take small steps of increment and you will become more and more divine every day. That is the path. Right? So choose your path wisely and go ahead. शशि, सदगुण सत मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. सतोगुण, सदगुण, ये सदगुण आते कहाँ पे है? मतलब isn't it coming out of the mind? माइंड के एट्रीब्यूट्स है ना ये. गुण कहाँ पे हैं? तमस, रजस और सत्व जो हैं, ये माइंड का नेचर है ना. राइट. तो फिर सारा कुछ ये भी तो फिर ईगो का ही हिस्सा हो गया ना. We will have this discussion later, Leslie. I cannot explain the whole thing again. We will discuss this one-to-one later. ठीक है? शक्ति जी, एक लास्ट क्वेश्चन. हाँ. All you have to understand is माइंड का नेचर है तामसिक, राजसिक या सात्विक. That's it. Forget it. और कुछ नहीं है इसमें भी. इसमें से कौन सा करना है? आप ऊपर की जर्नी में जा रहे हो तो it will be you have to aim to sattva because that is where your divinity percentage will increase. That's all. Okay. Yes. So with this we come to the end of the session. We are already 4 minutes over time, so I will stop this. देवेश जी, आपका फिर hand raise है. You want to share something? सर, एक क्वेश्चन था कि अगर हम डिजायर्स अगर किल कर दें या खत्म कर दें तो फिर पर्पस क्या रह जाएगा लाइफ का? जो लाइफ प्रोग्रेस किल कैसे कर दोगे सर? कौन सी बिल्कुल मार्ग कर से? दे, बिल्कुल. You have to outgrow them. बहुत बड़े You can't kill them. You can't suppress them. Kill का मतलब suppress करना है. Suppress से नहीं होगा. It will come back with the bang. प्रेशर कुकर की तरह वापस आएगा वो फाड़ के. हाँ, तो आपको फ्रीडम चाहिए फ्रॉम डिजायर. जीवन मुक्ता looks for freedom from desires, not suppression of desires. Okay, think about it. We will answer that in the next session. I'll say that Deveshi, the statement itself that kill the desire is an inappropriate statement. Yeah, you can't kill your desire. You have to outgrow them. You have to get freedom from desire. Okay, and that we have already discussed in the previous session. So you can watch the recordings. You will be clear on that. But if you have any question, we will handle that in the next session. Right? Sure. Okay. So meanwhile, let me welcome the late. कुछ लोगों ने उसके बाद भी ज्वाइन किया है. Okay, पूनम सिंह जी, सुशील जैन जी, वीपी सिंह, उनसे तो मिल लिए, विकास जी, सब आ गए हैं. Okay. So with this we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. I hope this session was valuable and we will continue the discussion in the next session. Till then, have a great day, have a great week, enjoy a great life, and Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Thank you. Take care. Good night. Good night.